Hello friends, welcome to the RPIIT Medical and Technical College. I am Assistant Professor Shaina Gupta from the Management Department. I would like to discuss a topic on a material management. What is material management? Material management is a method for planning, controlling and organizing the activities that are related to the flow of material within a company. This can lead to the control of the location, the movement, the time of those materials from the very first introduction in the process to the complete production process to the manufacturing process and final delivery. Material management makes sure that the materials are available whenever the consumer demand arises. Thus, it helps us to make a schedule of cost and resources that company already has or that company needs to procure. Material management helps to control the flow of materials aligned with the demand. That means when demand arises, we can make available the resources that are required to produce that product. Then prices, we can so that we can take the benefit of high or low prices, whichever is applicable. And quality, so that we can make a better quality product in a very cost effective way. And delivery schedules, that whenever the delivery is arising, we can make the delivery at the appropriate time. The supply chain is linked to the material management because this method helps us to plan and supply the organizational resources. Inventory also goes hand in hand with this, so that we can keep the track of the raw material and the specific products. By keeping the track of inventory, we can minimize our costs and we can ensure that we can get maximum return on our working capital. One thing that should be noted here is that the materials are classified into two parts: direct or indirect materials. Direct materials basically are those which are within the process and gives a finished product, and indirect material are those that do not become a part of the final product. So first of all, let us discuss about direct materials. All the materials which become the integral part of the finished product, or we can say which raw materials which are identified within a product and which represent the cost and benefit of the process, are called the direct material. These materials basically directly enter the production and become the part of the finished product. Raw material, semi-finished material, components, etc., which become the part and parcel of the final product, are known as the direct material. Example, when we are making a furniture, the wood is a direct material. Leather for a shoemaking industry is a direct material. Clothes in a garment industry becomes the direct material, and so on. Next comes indirect material. Indirect material are basically those materials that are the part of the production of the product but do not make a difference to the final product. They are used in production but they are not classified directly into the final product, or we can say we cannot trace its part in the final product. Indirect materials cannot be calculated or they cannot be measured, so their presence is not of a very high relevance in the delivery of the final result. Example, in a garment industry, the use of thread is not of a very high value that we have to specifically associate it with something. It's a very minute cost, so that becomes a indirect material. The grease, the oils, the lubricants that are used during the process of production makes the part of the indirect material. Okay, next comes the definition. According to H.B. Maynard, the material management is concerned with the location and purchase of needed material, their storage and movement.
what HB Maynard you want to say is that material management का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि जो भी कहाँ पर होगा, मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, कहाँ से ख़रीदा जाएगा, उन्हें कहाँ स्टोर किया जाएगा और उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली कैसे मूव किया जाएगा. इट ऑल्सो अरेंजेस टू कीप एन अकाउंट ऑफ देम. साथ साथ मटेरियल मैनेजमेंट हमारी क्या मदद करता है कि हम हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, हमारा जो भी मटेरियल है, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन कर पाते हैं. साथ साथ it is also responsible for planning their movement through manufacturing process, stock rooms or warehouses, whichever is applicable, and distribution channel. साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का डिलीवरी चैनल के दौरान, मतलब उस चैनल का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, स्टोरेज से लेकर, डिलीवरी चैनल तक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक किस तरह से प्रोडक्शन या मटेरियल मूव करेगा, उन सब का प्लान करने में भी हमारी मदद कौन करता है? हमारी मदद करता है मटेरियल मैनेजमेंट. नेक्स्ट कम, व्हाट डज अ मटेरियल मैनेजर डू? Very first thing that the material manager do is that they fulfill the responsibility of sustaining the supply of material so as to not the stop production. बेसिकली उनका काम क्या हुआ? उनका काम हुआ कि उनको मटेरियल की कॉन्टीन्यूस सप्लाई बनाए रखनी है ताकि प्रोडक्शन ना रुक जाए. वो ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेंट्री है ईच स्टोरेज लोकेशन पर जितनी भी अवेलेबल है वो सप्लाई चेन में रहे, वो अप टू डेट रहे. मतलब जब जैसी ज़रूरत हो तब वैसा मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड हो सके. साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद करें और जो हमारी मटेरियल मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करें ताकि जो हमारा कस्टमर है हम उसे सेटिस्फाई कर सकें. साथ साथ इसमें हमारे परचेजिंग डिसीजंस भी आते हैं जो हमारी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. और उसके अलावा जो दूसरे मटेरियल मैनेजमेंट रोल्स हैं उसमें मटेरियल मैनेजर्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री एनालिस्ट का काम आ जाता है एंड मटेरियल प्लानर का काम आ जाता है. ठीक है. देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. The very first point in importance of material management is that it keeps the total cost at reasonable rate. जो मटेरियल के कॉस्ट कंटेंट होता है, जो मटेरियल कॉस्ट कंटेंट होता है टोटल कॉस्ट का, उसको रीजनेबल लेवल पर रखा जाता है. अब साइंटिफिक परचेजिंग करते हैं तो हम मटेरियल को रीजनेबल प्राइसेस पर एक्वायर कर पाते हैं. उनको प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो वेस्टेज कम हो जाता है. इन सब फैक्टर्स की वजह से हम हमारे जो कॉस्ट कंटेंट है मटेरियल का उसको क्या कर पाते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? आपकी रीजनेबल रेट पर कंट्रोल हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अंडर चेक. अब जो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स की कॉस्ट होती है ना उसको भी अंडर चेक रखा जाता है. कई बार हमारे जो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है ना उसकी वजह से भी हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन की. क्यों? क्योंकि उन मटेरियल्स को कंट्रोल करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है. तो जब उनको भी पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है, उन पर भी प्रॉपर चेक लगाया जाता है, तो उनकी वजह से भी हमारी क्या होती है? कॉस्ट बढ़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स. अब जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होगा. अब प्रॉपर तरीके से क्यों इस्तेमाल होंगे? क्योंकि मटेरियल नहीं आ रहा है जी, काम नहीं हो रहा है, मशीन रुकी हुई है, ऐसा नहीं होगा. जब मटेरियल का सप्लाई कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा तो ब्रेकेजेस के चांसेस नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स पर ब्रेकडाउन का असर नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि इक्विपमेंट कभी भी आपका क्या रहेगा? आइडल रहेगा. फोर्थ पॉइंट आता है द लॉस ऑफ डायरेक्ट लेबर इज अवॉइडेड. अब जो लॉस होता है डायरेक्ट लेबर का वो भी कम होता है. फिफ्थ पॉइंट आता है आपका वेस्टेज नहीं होगी, नो वेस्टेज. अब स्टोरेज के दौरान पर, उनकी मूवमेंट के दौरान पर अगर उन पर कंट्रोल रखा जाता है तो स्टोरेज के दौरान या प्रोडक्ट मटेरियल के मूवमेंट के दौरान उनमें कोई वेस्टेज नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर सप्लाई.
जो सप्लाई है मटेरियल की वो आपकी प्रॉम्प्ट होगी, ठीक है, और जो लेट डिलीवरी के इंस्टेंसेस हैं वो भी बहुत बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टॉकिंग। जब हम प्रॉपर स्टॉकिंग करते हैं तो जो मटेरियल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी कंट्रोल रहता है। अगर हम ओवर स्टॉक कर देते हैं, ज़्यादा सामान रख लेते हैं, तो वो आइडल पड़ा रहेगा। हम कम रखते हैं तो सप्लाई पूरी नहीं होगी। तो अगर हम प्रॉपर स्टॉकिंग करते हैं तो जो मटेरियल में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है कंजेशन इज़ अवॉइडेड। मतलब एक बार ठूस के चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो हमें जिस समय जैसा सामान चाहिए उस समय हमें वो सामान मिल जाएगा, तो हमें फालतू का सामान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव आपकी मटेरियल मैनेजमेंट का है वो यही है कि हमें कॉस्ट को कम करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अचीव करना चाहता है। उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में सब बेसिकली आपके जो पॉइंट्स आते हैं उनमें सबसे पहला आता है लो परचेज प्राइस। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके मटेरियल डिपार्टमेंट का रहता है वो है कि जो भी रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहे हैं उसको वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पर परचेज करें। अगर डिपार्टमेंट लोएस्ट कॉस्ट पर प्रोडक्ट मटेरियल को ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो अनडाउटली उनका जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जो सेकंड पॉइंट इनका आता है वो है हाई इन्वेंट्री टर्नओवर। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है डिपार्टमेंट का कि वो हाई इन्वेंट्री टर्नओवर को अटेन कर सके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि हमारे वेलोसिटी क्या है स्टॉक को सेल में कन्वर्ट करने की। यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताता है कि हमारी एफिशिएंट मैनेजमेंट है इन्वेंट्री की, क्योंकि जो स्टॉक है वो बहुत फ्रिक्वेंटली बिक रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली सेल हो रहा है और बहुत कम मनी है जो हमारे को फाइनेंस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम उसी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें फर्दर रिफाइनेंस कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आता है अनइंटरप्टेड सप्लाई। जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो ये इंश्योर करता है कि हमारे जो मटेरियल की सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे। अगर कहीं डिस्ट्रप्शन आया, कहीं प्रॉब्लम आई तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे मटेरियल की। नेक्स्ट आता है गुड क्वालिटी मटेरियल। जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि सप्लायर से मटेरियल को परचेज करें। तो डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि जो मटेरियल है वो उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी, और फर्दर जो क्वालिटी के दूसरे मैटर्स हैं उनको भी स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना भी हमारे मटेरियल डिपार्टमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे हो, साथ ही साथ एक वेल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, आपका वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, और आप पीरियोडिक ऑडिट्स कर रहे हो अपने मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपके इसमें करप्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, प्लस स्मूथ फंक्शनिंग रहती है आपके डिपार्टमेंट में। लास्ट, कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो मटेरियल है उसको राइट क्वालिटी का परचेज़ किया गया है ताकि अननेसेसरी फ्रंट ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। लिस्ट एंडलेस है और एग्जॉस्टिव है, तो हम कुछ डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला आता है मेक और बाय डिसीजन।
जो मेक और बाय डिसीजन है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर आती है, क्योंकि इन्हीं के पर्सनल्स जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ सप्लाई के उनको इंटीमेटली और क्लोजली जानते हैं। तो जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्म करेगा टॉप मैनेजमेंट को अपना फाइनल डिसीजन फाइनेंशियल और दूसरे एनालिसिस करने के बाद कि किसी प्रोडक्ट को उन्हें खरीदना चाहिए या उस प्रोडक्ट को वो अपने आप अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन, मतलब जितने ज़्यादा होमोजीनियस या जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे उतना ही सिंपल और उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट हमारा मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस होगा। जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो रिव्यू करेगा कि इन्वेंट्री को एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल्स और डिस्करेज करेगा नॉन स्टैंडर्डाइज आइटम्स को और प्रमोट करने में मदद करता है स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट के डिज़ाइन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है असिस्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। असिस्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मटेरियल मैनेजमेंट का कि वो मटेरियल को प्रिक्योर करेगा, वो प्रिक्योर किसके लिए करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही तो प्रिक्योर करेगा, ठीक है। तो जो मटेरियल डिपार्टमेंट पर्सनल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं हमारे सप्लायर्स से और वो सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं कि अगर कोई भी नया डेवलपमेंट मार्केट में हो रहा है तो ये जो पर्सनल्स हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर को असिस्ट करते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के, ताकि वो कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, कोई नई मॉडिफिकेशन है जो सप्लायर्स ने करी है, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो कराएगा मटेरियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है। लास्ट आता है इंटर डिपार्टमेंट हार्मनी। अब इंटर डिपार्टमेंट हार्मनी की बात करें तो जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो हर डिपार्टमेंट से फर्म की जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ना सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट्स की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करता है बट इसकी अपनी सक्सेस भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की कोऑपरेशन पर डिपेंड करती है। तो जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो बहुत